तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो। For the last 2 days, we have been doing team setting, performance management, and a lot of things. Right now, we have entered into this phase of the last day of the training, wherein we are going to enter into entrepreneurship, business pitch, and market gap analysis. These are the 3 most important tools wherein you are going to understand that where lies a gap, what is the problem, what kind of solution you are going to devise, and how you are going to make a business pitch to the market. Our activity is very interesting today. We are going to work out with origami papers. Now you would just say, what sort of origami papers? These colorful papers are there in my hand. According to your hat color, I have white hat, yellow hat for yellow papers are there, and for red hat, this color is there. For green, and for the blue hat, blue color, and for black hat, black color origami papers. So these are not only papers for us. We consider this as our raw materials today, because we are going to be a manufacturing company. And what we are going to manufacture? We are going to manufacture board, paper boards. You might have just done all these things in your childhood. You might have sailed a lot of boats in the rainwater. Today we are going to do a lot of very interesting boards manufacturing through this origami papers. So what is that? The name of the activity is the Origami Board Startup Challenge. This is a Origami Board Startup Challenge is the name of the activity. The objective is to help learners identify business opportunities, analyze market gaps, generate solutions, and develop business pitch through hands-on poster presentation. We are having this chart papers with us. We are having this sticky notes with us. So today we are going to use this chart paper, this sticky notes to make our presentation, come to the stage and make a business pitch onto the paper boards that we have manufactured. So consider the paper boards that you are going to manufacture as the prototype. The real company is going to manufacture real boards.
but we are going to manufacture the prototypes today, and by manufacturing that prototypes we are going to make a sales pitch proposal. So this is going to give us a clarity about the entrepreneurship, business pitch and market analysis. These are the things that we are going to have today in the session. What is the activity overview? So let's work out with the activity overview. Learners will be manufacturing origami paper boards and consider it as a prototype for the company which is going to present the real boards into the market scenario. We'll do the manufacturing and then we are going to have a brainstorming session and create poster presentation based on the following key entrepreneurial steps. So we will see what are the key entrepreneurial steps we are going to follow today, and it is all learning by your own self. We have known do it yourself, DIY. So this is learning by yourself. So let's see what are the things that we are going to do. So Ranjan sir, can we just raise it to a little bit? There are different steps we are going to work out. What is the major problem or the need analysis? In the market, what do you feel? What is the major problem and what is the need analysis? You have to make certain representations are there, certain examples are also there. You can go through that one. Where lies the major gap or what is the gap analysis? Whenever you are going to manufacture a boat, where lies the gap in the market? And onto that gap, what is your idea generation? Onto your idea generation, what sort of solutions you are going to give to the problem which is existing already in the market? We are going to work out with that. The third step is, what are the alternative solutions? And then we have to find out the different ideas. When we could know that what are the alternative solutions, according to the alternative solutions, we are going to devise our ideas. Plan A, if it fails, then plan B is there. If plan B fails, then plan C is there, or else plan D is always there with us. So we have to make different plans and different proposals. Can we move on? Step number 4. What is the plan of action or the major strategies? हम लोग strategies क्या बना रहे हैं? कौन से strategy से हम market में pitch करेंगे अपना business proposal और किस प्रकार हम solutions लेके आएंगे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे मार्केट में, उसका सॉल्यूशंस किस तरीके से लेके आएंगे, एंड व्हाट वुड बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट वन. तो प्लान ऑफ एक्शन में 4 चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है. व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी अफोर्डेबल एंड व्हिच इज गोइंग टू बी कन्वीनियंट फॉर ऑल द बायर्स, व्हाट इज द प्लेस, कहां पे हम इसको बेचेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन और थ्रू व्हाट सोर्स वी आर गोइंग टू सेल इट, प्रमोशन, उसका सेल्स प्रमोशन हम किस प्रकार करेंगे. Everything we are going to cover up with this 4P of marketing strategy. The 4 P's of marketing: product, price, place, promotion. These are the most important thing to be identified. After this, what next is there? Let's see the 5th step. The 5th and the final step of the activity is, what is the sales module or business pitch deck? What sort of elevator pitch you are going to use on the stage, and all of them, they are going to be the customers. You would be the company, the representative of the company, and you are going to make a business pitch or business proposal and make an elevator pitch to that one. So what are the things that you are going to work out? Problems and solutions. What is your unique selling proposition? What is your USP? Target audience, who are going to be your target audience, and what is your revenue model for that one? Marketing and sales strategies, what we are going to use. And for example, there is a pitch of business proposal which is already given as an example. सारे स्टेप में आप लोगों को कुछ ना कुछ उदाहरण मिलेंगे. आपको क्या करना है, उदाहरण के हिसाब से आपको अपना बिजनेस प्रपोजल पिच करना है मार्केट में. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वर्क आउट. असाइनमेंट आपको क्या है, द असाइनमेंट टास्क स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, व्हाट टू डू. जैसे हम बोलते हैं हर एक क्लास में, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. व्हाट टू डू, मैन्युफैक्चर ओरिगामी पेपर बोर्ड्स एज अ प्रोटोटाइप ऑफ योर स्टार्टअप. ये आपके स्टार्टअप का एक प्रोटोटाइप है. Brainstorm in team about the market problems and the gap analysis. मार्केट में प्रॉब्लम क्या है और कहां पे गैप रह जा रहा है मार्केट में, जिसमें कि आपको उतरना है अपने बिजनेस प्रपोजल के साथ. डिजाइन अ पोस्टर प्रेजेंटेशन इनकॉर्पोरेटिंग द 5 keys entrepreneurial questions. जो 5 entrepreneurial questions लिखे गए हैं, वही को आपको क्या करना है, हमारे चार्ट पेपर पे डिजाइन करना है. प्रिपेयर अ 3 minutes बिजनेस प्रपोजल समराइजिंग योर स्टार्टअप. अपने स्टार्टअप को मार्केट में पिच करने के लिए आपको 3 मिनट का समय सीमा मिलेगा. प्रेजेंट योर आइडियाज ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस. मान लीजिए ये सारे आपके ऑडियंस हैं, आपको उनके सामने बिजनेस प्रपोजल पिच करना है और ऑडियंस की तरफ से आपको प्रश्न भी उठ सकते हैं कि इतना कॉस्टली क्यों है आपका बोट में आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल किए हैं, कौन से मार्केट में इसको सेल करने वाले हैं और कौन इसके प्राइम कस्टमर्स रहने वाले हैं. आप क्रूजर बोट बना रहे हैं
या तो फिर आप पैसेंजर बोट बनाएंगे या तो फिर डिलीवरी के लिए आप यूज करेंगे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बोट मैन्युफैक्चरिंग, वेदर यू यूज इट फॉर अ सिविलियन पर्पस और यू यूज इट फॉर अ आर्म्ड फोर्सेस. लेट्स सी अबाउट दैट वन. व्हाई टू डू दिस? हम ये जो आज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? डेवलप एन एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, आपके सोच में परिवर्तन लाने के लिए कि हम केवल जॉब के लिए नहीं बने हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं. सो हैव एन एंटरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस. डेवलप, एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज कीजिए. इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस, हाउ यू आर गोइंग टू पिच इट ऑन टू द ऑडियंस. आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जागरूक कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज को बढ़ाइए. लर्न मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस प्लानिंग, मार्केट कैसे रिसर्च करना है और बिजनेस कैसे प्लान करना है, इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए आज का प्रेजेंटेशन बनानी है. ओके, नाउ हाउ टू डू इट, किस प्रकार इसको करेंगे? फ्रॉम टीम्स 4 to 5 members are going to align and assign the different roles. आपको कुछ रोल्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे सीईओ कौन होगा आपका, मार्केटिंग हेड कौन होगा आपका और फाइनेंस हेड आपका कौन होगा. सो यू आर गोइंग टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट वन. खेल खेल में बहुत कुछ चीजें सीख जाएंगे आज. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेयरइन वी आर गोइंग टू लर्न बिजनेस एज वेल. कल मैनेजमेंट में कुछ पढ़े थे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीखे थे. आज हम लोग बिजनेस सेल्स कैसे करेंगे, बिजनेस सेल्स पिच कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न दैट वन टुडे. वेरी इंटरेस्टिंगली, तो 2 मेंबर्स हमारे क्या करेंगे, ग्रुप में 2-3 मेंबर्स बोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग में लग जाएंगे और बाकी के मेंबर्स क्या करेंगे, अपना बिजनेस प्रपोजल पिच कैसे करेंगे वो उसको ध्यान में रखेंगे. और प्रेजेंटेशन कौन कौन देंगे और आपके बोर्ड को लेके आप हाथ में अपना बोर्ड पकड़ सकते हैं एंड यू कैन गिव योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू दैट वन. सो ईच टीम मस्ट मैन्युफैक्चर द पेपर बोर्ड यूजिंग द ओरिगामी टेक्निक, जो कि हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे. कंडक्ट रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार आप लाएंगे, मार्केट में बिजनेस को कैसे आप पिच करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, यूज मार्कर्स, चार्ट, स्केच, इंफोग्राफिक एंड मेक इट एन एनर्जाइजिंग प्रेजेंटेशन. आपके पास चार्ट पेपर होगा, आपके पास वो स्टिकी पेपर्स होंगे, आपके पास कलर पेपर्स होंगे, आपके पास स्केच पेन्स होंगे. यू आर गोइंग टू यूज इट. Make your poster presentation the best one to present it to the audience. The team leaders will deliver the business pitch in front of the audience. जो team leaders होंगे, they will be coming to the stage along with your boat. Use your boat as a paper boat, but that is a prototype only. So मत बोलिएगा कि ये paper का boat है. You say that this is a prototype that we are going to design and we are going to sell the real boat, maybe for civilian purpose or for armed forces. This is going to be the activity for today. अब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीखते हैं.
My name is Jagmohan Patnaik, and these are my colleagues, Swapneshwar Mahanti, Rashmi, and another one who is right now my cameraman, Deen Dayal. So we are representing our company, Sequin Private Limited, and we have prepared a video graphics to represent our company and the product we are selling. Today we are selling the product. So can you please? For an entrepreneur, 3 questions are more important than anything. That is what, why, and how. What is the product? Why it's need? How it's help us and others. So the first question, what is the product? Our product is the Sequin 2 type of model boats. The both model have different type of aerodynamics. इसका aerodynamics ये हमने बनाया है बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं बिजनेसमैन के लिए, या फिर डेली यूज नॉर्मली। जैसे हमारा बीच में हो गया कि जब आप बीच जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें सिर्फ घुमाने के लिए वहाँ पे रहते हैं, बोलते हैं कि हमारे बोट में आपको घुमा लेंगे, ये उसी हिसाब से हमने ये बनाया। और ये दूसरा वाला है जिसका आप ये डिजाइन देख सकते हैं, इसका एज का देखते हैं 4 पेज है, क्योंकि ये हमारा एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनाया गया है। ये इसमें क्या रहता है, एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ये ज़्यादा स्पीड जाएगा, उसके हिसाब से ये ज़्यादा स्पीड जाएगा। ये हमने किस लिए बनाया है? ये हमने बनाया बेसिकली डिफेंस के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए या फिर सेफ्टी पर्पज के लिए हो गया। कोई अगर बाई चांस समुद्र के बीच में डूब रहा है तो हम उसके पास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जाना चाहेंगे, तो इसीलिए हमने ये उसके पर्पज के लिए ये बनाया है। या फिर आर्मी के आप अगर आर्मी के नेवल वाले पर ले लीजिए, क्या होता है कि जब बहुत जगह होता है जहाँ पर बड़े शिप जा नहीं पाते और हमें वहाँ पर कम समय में जल्दी जाना पड़ता है, तो इसीलिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। is here to present our startup EcoBot creation under CTTC Management Development Program. Our goal is to introduce a sustainable alternative to traditional boats by creating water-resistant origami boat made from recycled paper. Today we will discuss our business model, market gap, potential solution, and key strategy to make this idea a success. नंबर से आपको बताया कि हमारा एक बोट सर्विस है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जो हमारा लोकेशन है, सर्विस का लोकेशन है वो पुरी में है। हमारा ये बोट मॉडल है जिससे हम एक इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और वो कॉस्ट इफेक्टिव का, और हमने ये बिजनेस क्यों चुना और हमारा बिजनेस चुनने का क्या, हमने उसके लिए कुछ मार्केट सर्वे किया हुआ है, जो कि हम अपने मॉडल के यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ हमारा प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू मॉडल जो कि अदर कंपनीज जो मार्केट में है वो कर रही हैं, जो अभी तक, और जो हमारा जो टारगेट है एक रेवेन्यू का जो हमारा 2020 तक का टारगेट है वो हमने यहाँ पे बाई ईयर और दिखा रखा है हमने। और हमारा मार्केटिंग में सेल्स और उसकी स्टडीज़ क्या हो सकती हैं वो हमने दिखा रखा है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं जब इस बिजनेस में हमारे हैं, तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो हमने, चैलेंजेस, मार्केट नीड क्या है। जैसे कि हमने डाला कि प्रॉब्लम हमारे पास मार्केट नीड, हमने सर्वे किया, हमने देखा कि मार्केट नीड अभी 40% से ज़्यादा आ रही है मार्केट नीड, और उसमें चैलेंजेस 15% चैलेंजेस हैं। सॉल्यूशंस का इम्पैक्ट हमने 30% डाल रखा है। तो यूनिक उसमें हमारा हम अपना यूनिक पर्सनल एनालाइज क्या क्या कर रहे हैं सारा हमने मॉडल के एक ग्राफ के तौर पे हमने डाला हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा हमने मतलब कि ये देखा कि जो टूरिज्म को है यहाँ पे, जो इससे पीछे की कंपनियाँ हैं या जो हैं वो मनचाहा पैसा ले रही हैं और इंश्योर नहीं कर रही है कि आपका जो टूरिज्म है वो सेफ है। तो हम एक ऐसे बोट सर्विस दे रहे हैं जो कि सेफ है और इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का होने का मतलब ये है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट पे हम काम कर रहे हैं। हम उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि अगर जो बोट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो डीजल मतलब फ्यूल का जो उनका फ्यूल कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। फ्यूल कंजप्शन को हमने कम करने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं अपने बोट्स पे। हम टॉप सर्फेस में और जहाँ पे हम लगा के सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं। Hello everyone, good afternoon. And our company name is Ocean Express, and we do shipments via ship. And there are some problems and solutions in a boat shipment startup, like high initial investment. Problems are there like purchasing or leasing the boat, obtaining licenses, and setting up logistic require a significant upfront investment. The solution of this problem is start with lease a smaller boat to minimize cost, and seek investors, business loans, and grant tailor for maritime startups. And second is regulatory and weather and natural hazards, like bad weather conditions and unpredictable water current can delay shipment and damage the cargo also. And the solution is use advanced weather tracking system and schedule shipments during favorable conditions and contingency plan in place. And another problem is high fuel and maintenance costs. Fuel prices fluctuates by time, and boats require regular maintenance to remain operational. And the solution of the problem is optimize fuel efficiency with route planning, use eco-friendly fuel alternatives, and schedule preventive maintenance. हमको पता है कि आज का ज़माने में जैसा बोट यूज होते हैं ज़्यादातर मशीनरी टूल्स इंजिन्स ये सब लगता है जैसे कि हमारा इकोसिस्टम को हार्मफुल पहुंचता है। वी आर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल बोट्स, नॉट हार्मफुल आवर इकोसिस्टम।
then competitors might not focus the sustainability and affordability. And a key gap is the absence of water resistance, biodegradable materials, and water production. थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इसमें से हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दूसरे कंपनी से, हमारे कंपनी से सॉल्यूशन निकाल के कितना अच्छा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं टू हेल्पफुल आवर इकोसिस्टम. डेवलपिंग इलेक्ट्रिक और सोलर पावर बोट्स टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन इज द मेजर थिंग्स, क्योंकि हमको भी पता है कि फ्यूचर में हमारा फ्यूल खत्म भी होने वाला है. अगर हम उसको सही से यूज़ नहीं किए तो वो खत्म होने वाले हैं. तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से, सूर्य के कौन से सोलर एनर्जी से हम कैसे बोट को चला सकते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी से हम अपना बोट बेच सकते हैं. तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहता है कि जैसे बनाने के लिए हमारा प्रोडक्ट कैसा रहता है. फर्स्ट इको फ्रेंडली बोट मेड फ्रॉम द सस्टेनेबल मटेरियल्स, बाम्बू, रिसाइकल प्लास्टिक्स. जैसे कि हमको पता है कि बाम्बू में बोल रहा हूँ तो बाम्बू कोई भी सुनेगा तो बाम्बू पता है कि टूट जाएगा, ये हो जाएगा. तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट बैम्बू यूज़ करते हैं जो कि इसमें मिलता है अमेरिका के उधर तरफ, जिसमें जो बाम्बू मिलता है वो हम स्पेशल यूज़ करते हैं हमारे बोट में. थर्ड प्राइस तो ज़्यादा मैटर करता है. दूसरे के जितना भी ज़्यादा हैवी प्राइस रहता है बोट का, लेकिन और कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता. जैसे कोई फिशरमैन हो गया, उसको अगर बोट चाहिए, उसको भी उसका अपना घर चलाना है, तो वो तो इतना ज़्यादा पैसे से अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फ्यूल पावर बोट्स एंड प्लेस सोल्ड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ईजी हो जाता है कहीं से खरीदना. कोई अगर कोई ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई दूर से मंगा रहा है तो पास में आकर लेना, उसके लिए उसको ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है. तो ऑनलाइन होगा तो डायरेक्ट हमारा एजेंसी के लोग डायरेक्ट जाके उसको प्लेस कर सकते हैं. Nothing can restore iron but its own rust. Nothing can restore you but your own mindset. Good morning, good afternoon, everyone. My name is K. Santosh Kumar. I'm here to tell about our company, Black Knights. We made all type of boats like rescue boats, traveling boats, patrolling boats. Thank you, Santosh, for giving me this opportunity. A famous quote by Albert Einstein that try not to become a successful man, but rather try to be a man of value. Good afternoon, friends. I am Satyajit Nayak. I am here to represent behalf of my company, Black Knights. We already prepared on prototypes, which is represents significant and success before preparing our final products. And here I am going to tell you that Knight means the most fearsome soldier of the medieval world. So it represents our boat itself. And strength of our boat is its build quality and its light cost, easy to accessible to the market, and we are providing services 24/7. And our facilities also open for outdoor countries also. Our idea and generation to prepare this boat is to provide a better transportation facilities to normal people or for everyone, avoid any kind of water pollution, and always having a visionary idea to make our boat with 100% composite. As for physics, we know that density is low as possible, it will go much faster. So for target audience, we are mainly looking for government agencies, and which is rescuing and patrolling boats we are making. For tourism industry, we are making that housing boats. So for further clarification and for marketing strategy, my friend Aniket is going to continue. Thank you, my friend, for addressing me. And we can, as you can see, in unique selling proposal, we have eco-friendly and fuel efficient, then after customization options and lightweight and durable options. So first we have also the electric boats for eco-friendly and fuel efficient for diesel engines, and customization options also we have. So who will need luxury boats like for any private purpose, we can also customize boats. Then My name is Raj Kumar Saab. White India Private Limited, ये कंपनी बनाने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने हर जगह विजिट किया और मैंने देखा कि जो भी नाव बन रहे हैं, जो शिप बन रहे हैं, जो बचाव कार्य में जुटते हैं, या फिर अन्य तरह के या फिर जैसे क्या कहते हैं उसको, जो यात्री बाहर से आते हैं विजिटर के लिए, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो वो हर तरह का मतलब शिप तो मैंने देखा. लेकिन वो सारी शिपें जो होती है धीरे धीरे क्या होता है कि पानी में वो डैमेज हो जाती है. ठीक है, तो मतलब एक तरह से क्या देखा जाए, अगर हम मेंटेन उस पर करते हैं तो कुछ लॉन्ग टाइम तक चलता है, उसके बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं. तो मैंने वाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हम लोग एक ऐसा कंपनी बनाया जो हम लोग इसमें एक टारगेट बिल्डअप किए हैं कि हम लोग एक ऐसा शिप बनाएंगे जो लॉन्ग टाइम तक वो पानी के अंदर चल सके या पानी के ऊपर रहे, वो भी पानी के अंदर में भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने ऐसा कुछ मेटल उसमें चूज किए हैं, जिस मेटल के जरिए हम उसको बनाए हैं, और उसमें जो फंक्शन वगैरह जो है सारा कुछ इंक्लूड किए हुए हैं. तो जो वाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो हमारे टीम जो मिलकर जो इस बोट का जो निर्माण किया है, तो उसमें खासियत ये है कि अगर वो उस बोट के जरिए अगर कहीं अगर चक्रवात आ जाए बीच में, तो वो उससे बिल्डअप कर सकता है. क्यों? क्योंकि उस शिप के अंदर हमने वो प्रेशर डाला हुआ है कि उस चक्रवात से वो निकल सकता है. क्योंकि कहने का मतलब ये है कि रॉकेट जब हमारे वायुमंडल से वो जंप करता है तो वो हमारी पृथ्वी पर वो हाई प्रेशर से
नीचे की ओर दबाव बढ़ाता है, जिस कारण वो ऊपर की ओर भागता है। तो उस टाइप से मैंने ऐसा बोट तैयार किया है, जो वो बोट जो है पानी के अंदर वो प्रेशर बनाएगा और वो बोट बिल्कुल बाहर की तेजी की ओर निकलेगा, क्योंकि चक्रवात जो होता है वो रोटेशन में मूवमेंट करता है, और वो रोटेशन मूवमेंट करता है तो चक्रवात क्या करता है, बोट को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही बोट तैयार किया है, तो वो बोट जो है वो बाहर की ओर मतलब वो आसानी से निकल सकता है। हाँ, और दूसरी बात ये है, खास ये है कि वो बचाव कार्य में ज्यादा यूज कर सकते हैं। बचाव कार्य मतलब जैसे हो गया कहीं बाढ़ की स्थिति बने रही तो उस जगह पे हमें इजीली यूज कर सकते हैं, और उसमें सेफली आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर धारा का जो बहाव जो होता है वो काफी तेज होता है, वो पलटने का डर ज्यादा रहता है, तो इससे क्या होगा, वो आसानी हो चारों मतलब कहने का मतलब ये को वो 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है। हमने इसे तैयार किया है, तो उसमें कोई सा कोई खतरा नहीं। हाँ, रही बात जो उसके अंदर में जो बैठे रहेंगे जो यात्री, उसके लिए क्या सेफ्टी है वो मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। सेफ्टी वो इसके अंदर में ये है कि उसके अंदर जो हम लोग बेल्ट जो यूज किए हैं, मतलब सेफ्टी जो बेल्ट यूज किए हैं वो गद्दे टाइप का होता है, क्योंकि ताकि कहीं चोट ना, जो हेलमेट जो होता है वो भी बिल्कुल सेफ ही होता है, और वो आसानी से उसमें यात्री बैठ सकता है और सेफली मूवमेंट करेगा। तो उसमें यात्री का एक ऐसा ट्रेनिंग भी होता है, 1000 करके एक ट्रेनिंग है जो खतरे का किया जाता है वाटर में, प्रॉपर नाम नहीं पता, HRI करके उसे कुछ है जो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, जो हेलीकॉप्टर से नीचे उन लोगों को छोड़ा जाता है और डायरेक्टली उन लोगों को बचाव कार्य में जोड़ा जाता है। तो उससे रिलेटेड है बोट, और बहुत ही हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये बहुत कॉस्टली है, बट ये बहुत ही सेफ है और बहुत ही आसानी से लोगों को बचाया जा सकता है। तो मैंने ये सोच के ये मॉडल तैयार किया है, और मतलब ये प्रोग्रामिंग बनाया है। तो मुकेश कुछ इसके बारे में बताएंगे? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं पहले इसके इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इको फ्रेंडली है, एफोर्डेबल लाइफ सेविंग बोट्स है, और ये फ्लड प्रोन एरियाज में क्या करता है, काम करता है ये मेरा बोट्स। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, इसमें देखिए मैक्सिमम ओवर 50 मिलियन पीपल एट अ रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ एफोर्डेबल रेस्क्यू बोट्स। तो सॉल्यूशन इसका है our inflatable and self developing boats can be activated in under 5 minutes saving flags, यानी 5 मिनट के अंदर ये बोट मेरा तैयार हो जाता है। किसी भी प्रभावित क्षेत्र में ये जाने में ये 5 मिनट में मेरा ये बोट रेडी हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम कम होने की वजह से लाइफ सेविंग हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये टारगेट मार्केट क्या है इसका वो जानेंगे। NGO, गवर्नमेंट्स एजेंसी एंड डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लड प्रोन कंट्री, जितने भी ऐसे कंट्री है या फिर गवर्नमेंट संस्था है उनसे हम लोग ये टारगेट करेंगे। सेल्स मॉडल एंड रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, वी सेल बोट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट NGOs विद एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम गवर्नमेंट के थ्रू इसके रेवेन्यू को जनरेट करने का प्रयास करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, आवर बोट्स कॉस्ट 30% लेस देन कॉम्पिटिटर ड्यू टू एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। जो अदर्स में हम लोग का कॉम्पिटिटर है उन लोगों से 30% ये कम है कॉस्ट इसका। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, वी विल यूज पार्टनरशिप, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म्स। इसको हम लोग मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, पार्टनरशिप किसी से कंपनी से करके भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके भी किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, अनलाइक बुल्की एक्सपेंसिव बोट, आवर मॉडल इज पोर्टेबल एंड अफोर्डेबल। फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, वी एक्सेप्ट $5 मिलियन इन रेवेन्यू विद द फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में हम लोग का ये टारगेट है। और मेरे एक फ्रेंड है जो इसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और अच्छी तरह से बताएंगे। Myself Piyush Kumar Sain, I am the designer of this company, White India Private Limited। जैसे कि देख सकते हैं कि इस बोर्ड में तो जो मटेरियल यूज़ किया है वो कार्बन फाइबर है। तो जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये जैसे कि सुनामी आता के बाद समय जो डूबने की चांसेस है वो कम होते हैं, क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बहुत ही नीचे है, जो कि पानी के ऊपर तैरने के हेल्प रहता है। तो इसके साथ और एक ये जो देख सकते हैं वो 2 एक्स्ट्रा बोट्स क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा 2 बोट्स होते हैं, जैसे कि उधर साइड में रखते हैं कि उधर जाके पता चलता है कि ये कुछ इसकी जैसे कैपेसिटी है कि 15-20 को लेके आ सकता है, और वहाँ पर जाके पता चलता है उससे ज़्यादा है और कोई बोट आ नहीं पा रहा है, तो इसके जरिए उसको इसके अंदर सोडियम और नाइट्रोजन को जो है उसको एक धागे की मदद से वो मिला के वो एयर जो बोट होता है वो फैलता है और उसमें लोगों को बचाया जा सकता है। I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your needs. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute the source within you. Let us work together for unity, peace, and love. Thank you.